So one factor which I would like to bring up here is when I speak to my clients and even while consultation they also put that point कि मेरा हेयर अच्छा नहीं है, हेयर फॉल बहुत होता है, स्किन अच्छा नहीं है, स्किन में ड्राइनेस है, नेल्स बहुत ब्रिटल रहते हैं. सो वहाँ पे मैं तो हमेशा मेरा पूरा जो फोकस होता है वो होता है राइट इनटेक ऑफ प्रोटीन पे. व्हाट वुड यू लाइक टू से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव गुड प्रोटीन फॉर स्किन, नेल्स एंड हेयर? प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रोटीन के साथ साथ जैसे कैल्शियम इंटेक है, स्पेशली फॉर वुमेन. आई हैव सीन उनको पोस्ट प्रेगनेंसीज एंड ऑल कैल्शियम एंड आयरन दे डोंट नो कि डेफिशिएंट है एंड दे कीप कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन और लैक ऑफ ऐसा एनर्जी नहीं है, फटीगनेस फील हो रहा है एंड दे थिंक कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, बट बेसिकली आप न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो. आइदर आप उसको डाइट से करो एंड अगर आप डाइट से आपकी बॉडी कवर अप किसी वजह से नहीं कर पा रही है तो देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज हाइड्रेशन फॉर स्किन हेल्थ? Hydration is very important. Dry skin will never glow. And dry skin will always have fine lines faster as compared to those who are hydrated well. Right. So and it's a long term process. कई बार पेशेंट ना, जैसे मैं उनको बोलती हूँ आप हाइड्रेट करो, आप पानी पियो. 2-3 महीने वो जोश में पूरा अच्छे से पियेंगे एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स जैसे उनकी स्किन अच्छी हो जाती है फिर वो मेरे पास आते नहीं है, काफ़ी टाइम तक गैप हो जाता है एंड देन थोड़े दिनों बाद वापस वो पानी पीना कम कर देते हैं. Happy and healthy morning, friends. Welcome back to one more amazing episode of Aura Health Hub. Few months back, we did an episode with a dermat and we spoke about basic skincare. Today, we have Dr. Divita Buraria, 12 years experienced dermatologist. She is expert in handling acne, pigmentation, PCOS related skin issues and other skin issues. She's also a founder of her own brand, Dr. Divita Skincare. Let's hear more about her from Divita herself. Welcome to Aura Health Hub, Divita. How are you doing? I'm good. Thank you for having me here. Thank you so much. So we did an episode with a dermat earlier and we spoke about basic skincare. Today we wanted to dig deep into this topic and we had two things in our mind. But before we move ahead with our topics, we would love to know more about you. I've done my MD dermatology from JJ Hospital, Mumbai, and then I did my cosmetology fellowship advanced course from Germany, and then I started practicing in Thane. Wow. From last 12 years, I'm working in Thane. I'm attached to Bethany Hospital as well, and now I have developed my own skincare brand under the name Divita. Wow, that's awesome. And today we just wanted that, you know, there are two things which are, you know, अब मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेंड्स के ऊपर बात चल रही है. जनरली आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी को पता नहीं था कि विटामिन सी क्यों यूज करना चाहिए, सिरम्स क्यों यूज करना चाहिए, एंटी एजिंग के लिए क्या करना चाहिए. बट आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड्स चल रहे हैं. तो वी वांटेड टू हैव अ एक्सपर्ट ऑन Aura Health Hub. We wanted to speak about that. Also, I meet a lot of patients. And I see a lot of patients who are suffering from PCOS, right? Yes. Now, whenever we have a PCOS patient, they always have some skin concerns also. So we also thought that we will cover that topic as well. So before we move ahead, I will start with the basic question जो मैंने अभी आपको पूछा. I have a 12-year-old daughter. And even she knows, you know, vitamin C use करना चाहिए, serum use करना चाहिए. There are so many trends in the market, Divita. But I would like you to tell us what are the necessary trends which we really should feel that we should follow them. And are there any disadvantages or a group of people who should not be, you know, जैसे teens हैं, बच्चे हैं, जिनको ये trends में अभी नहीं पढ़ना चाहिए. So what is your take on that? So basically, thanks to internet, social media, YouTube, that there is a lot of awareness, and these Gen Z crowd, the young crowd, they basically know, they like to read about it. They want to acquire knowledge about these molecules, and of course, these viral reels have helped them a lot. There are very good, wonderful molecules which are very nice, and you must have in your skincare routine. But yes, at the same time, कई skincare routines है and कई molecules ऐसे which are good, but they are age specific or you condition specific. या उसको use करने का एक proper way होता है, तो they should do it.
तो जनरली मैक्सिमम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जनरली जिनकी स्किन बहुत सुपर सेंसिटिव है Yeah. एंड कई बार वो लोग इन प्रोडक्ट्स को लगा लेते हैं तो उनको सूट नहीं होता है. सो Right. देयर दैट इज द प्लेस वेयर माय रोल कम्स इन कि Yeah. कौन से पेशेंट को क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए एंड देन विच कंसंट्रेशन दे यूज. Yeah. As you said, vitamin C, yes, it's a very wonderful molecule and it works everywhere. It works for glow, it works for pigmentation, and it's anti-aging. So for me, it's a hero molecule. But yes, at the same time, अगर आप 5% vitamin C use कर रहे हो तो बहुत लोगों को सूट होता है. पर आप मार्केट में देखोगे 20% भी है. Yeah. And I have seen young teenagers girl 18-19 years वो 20% विटामिन सी लगाते हैं. तो बेसिकली उस एज में जरूरत ही नहीं होती इतने हाई कंसंट्रेशन की. Yeah. Right. So it is unnecessary they are using it and then फिर कई बार उनसे रिएक्शन भी हो जाते हैं. Yeah, so one highlight for me from this conversation is whatever trend you are following, it is very necessary to take advice from an expert. Yes. Yeah. So these molecules are like right time and right way of using it. So आपने विटामिन सी के बारे में बताया. So what is the use, who should use it, and obviously it is a hero molecule. Now I have heard about few more molecules also. What will you say about retinol? Because whenever I speak to someone, आजकल आप मेकअप आर्टिस्ट से बात करो, आप ब्यूटिशियन से बात करो, वो भी आपको बताते हैं कि रेटिनॉल जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए आपको वो यूज करना ही है. बट अगेन वी वुड लव टू हियर फ्रॉम अ एक्सपर्ट who should use retinol, who should not use, and is there any specific group who should completely avoid this molecule? So retinol basically कैसे हेल्प करता है? It increase your cell turnover. तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है as a anti aging. So definitely as you said it is gold standard. तो जब भी anti aging तो I generally prefer कि जब once you cross 30-35 age and because of the stress and pollution जो आज का lifestyle है, तो aging भी थोड़ा fast हो रही है. And what we are eating junk food, आपको तो पता ही है कि nutrition आप लोग कि कैसा डाइट हो रहा है आजकल जनरल. एजिंग भी फास्ट हो रही है. उसकी वजह से अभी रेटिनॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं हर जगह एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड हेल्दी. एवरीबडी वांट्स अ हेल्दी स्किन. तो उसके लिए रेटिनॉल यूज कर रहे हैं. सो उसके डिफरेंट परसेंटेजेस अवेलेबल होते हैं. तो आजकल जो नया ट्रेंड है, मैक्सिमम कंपनीज अपने परसेंटेजेस अपने बॉक्स पे लिखती है, लेबल्स पे करती है. तो लोग उसको पढ़ के भी यूज कर सकते हैं. जैसे बिगनर्स है, स्टार्टिंग में आप यूज कर रहे हो, यू कैन गो फॉर लोअर कंसंट्रेशन 0.2%. एंड जैसे जैसे आपको सूट होने लगे तो आप हायर कंसंट्रेशन पे जा सकते हैं. So, जब आप बोलते हो कि बिगिनर्स, तो इज व्हाट एज ग्रुप कैन यू? बिगिनर्स इन द सेंस जो फर्स्ट टाइम रेटिनॉल यूज करते हैं. इवन इफ आई एम 40 एंड आई एम स्टार्टिंग एट 40 रेटिनॉल, मैं कई बार एकदम से हाई कंसंट्रेशन का यूज करूंगी, मुझे नहीं सूट होगा. तो बिगिनर्स मतलब जो फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ रेटिनॉल, दे शुड यूज फॉर स्मॉलर कंसंट्रेशंस ऐसे. बट इट्स एंटी एजिंग. बट वही मैंने कहा, आई हैव सीन 18 इयर्स लोगों को भी रेटिनॉल लगाते हुए. तो उनको उस टाइम उस एज ग्रुप में हर पेशेंट को रेटिनॉल की जरूरत नहीं होती है. तो वो एज पे इट्स नॉट राइट. बट वंस योर साइंस ऑफ एजिंग, आप वो लेट 20s या अर्ली 30s से आप लोअर कंसंट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं. राइट. एंड इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर प्रेगनेंसी. तो अगर इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तब भी आपको रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए. एंड अदर देन प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी, इज देयर एनी अदर ग्रुप who should completely avoid retinol? There are some super sensitive skin जिनको retinol बिल्कुल सूट नहीं होता है. But now there are other molecules are also there which is equally good like retinol, but they are not that sensitive. तो उससे जो irritation burning है वो नहीं होती है. Right. So there are other group of molecules also. Right. Just like vitamin C and retinol, again there is one more hero in the market, that is niacinamide. Yes. Right? Yes. So उसका role क्या है? क्या age group को वो use करना चाहिए? What should be the purpose or the expectation when you are using this molecule, and who should not use this molecule? Generally niacinamides are gentle molecule and it works wonderful in all age groups. Okay. So as young as मैं teenagers में भी दे देती हूँ जो lower concentrations है, and you can use in even if you are in 60s. So it's basically it's calming, it's hydrating. Yeah. And so it belongs to each age group. उसमें भी different concentrations आते हैं, 5%, 10%. So you can start. Niacinamide is like it's for everyone. Okay. And there is no such harm if Generally, very rarely I've seen patient जिनको niacinamide नहीं सूट होता है, and in that case they can go to lower percentages. Okay. So when we are talking about retinol, vitamin C, so what I want to ask is, can we use retinol, vitamin C and niacinamide together?
नो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप साथ में मत यूज करो, एक एक का फायदा लो, या जनरली आप 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हो। सपोज नियासिनामाइड आपने अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड किया है, तो रेटिनॉल आप अपने नाइट रूटीन में कर लो, Right. एंड देन इन रोटेशन आफ्टर सम टाइम यू कैन चेंज रेटिनॉल या नियासिनामाइड की जगह विटामिन सी ऐड करके फिर। बट देन आई जनरली पर्सनली मैं एक साथ बहुत सारे मल्टीपल एक्टिव्स मैं पेशेंट्स को मना करती हूँ यूज करें, देन चांसेस ऑफ इरिटेशन बढ़ जाता है, और कई बार तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि कौन से मॉलिक्यूल से इरिटेशन हो रहा है। करेक्ट, हाँ, And वो then- ऑब्जर्व नहीं कर हाँ, तो पाते. जैसे आपने 3-4 महीना रेटिनॉल यूज कर लिया, फिर आप रोटेशन में नेक्स्ट मॉलिक्यूल यूज करो। ओके, देविता, वे ये सब मॉलिक्यूल्स तो पहले इतना अवेयरनेस नहीं था. वी हैव जस्ट गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन. Yes. And if you want to have a healthy skin, right? So what are the other factors generally females should take care of, like nutrition factor, lifestyle factor? So what factors do you feel are very important for having healthy and glowing skin? सो जैसे भी आपने कहा ना कि हमें रेटिनॉल बहुत यूज़ करना चाहिए, ये सेल टर्नओवर में हेल्प करता है, तो उसी तरह से सेल टर्नओवर में हेल्प तभी करेगा जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा। अगर आपके पास बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एज मैंने आपसे भी कई बार बात करी, आपने हमेशा बहुत स्ट्रेस दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। Yes. एंड मैं भी पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपका भी जो डाइट है वो अच्छा होगा तो ही ये क्रीम्स ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगी। Correct. हाँ, सिर्फ आप क्रीम्स लगा रहे हो और आपका डाइट पे आपका ध्यान नहीं है, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो, वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, स्लीप तो इज अ न्यू, आई थिंक इट्स बिकम अ न्यू डिसीज जैसे हो गया है कि स्लीप का टाइम नहीं है, और कई लोग कहते हैं हमें आती ही नहीं है, स्ट्रेस दिमाग में इतना चलता रहता है। तो उन सब वजह, अगर आप वो सब नहीं है तो इन मॉलिक्यूल्स का भी इफेक्ट कम हो जाता है। फिर कई बार पेशेंट्स कहते हैं दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग मी या दिस प्रोडक्ट इज नॉट हेल्पिंग मी, तो मैं एट द सेम टाइम उनको बोलती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। एंड समटाइम्स मैंने काफी पेशेंट्स को बोला है कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू गो एंड मीट अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको पूरा एक चार्ट बना के देंगे कि आपके डाइट में जैसे क्वांटिफिकेशन आप जैसा जो बताते हैं वो, कि उनका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स होने चाहिए, देन स्लीप, देन थर्ड इज स्मोकिंग। ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से भी स्किन डैमेज जल्दी होने लगती है। Right. I have always emphasized on nourishing from inside as well as outside. हाँ, so basically it's a holistic approach. दोनों साइड से आप अपनी स्किन पे आप वर्क करेंगे तो आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। कोई भी एक साइड होगी और दूसरी साइड आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो वो या तो वो आउटकम बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगा। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हम प्रोसीजर करा लेते हैं, कोई हमारे यहाँ कोई फंक्शन आ रहा है तो लेट्स डू सम प्रोसीजर, बट सेम चीज प्रोसीजर्स में भी होती है। मैं भी कई बार कहती हूँ आप लेजर, डोंट जंप टू लेजर्स। हाँ, पहले आपका बेसिक स्किन केयर, आपका बेसिक लाइफस्टाइल रूटीन, उसको पहले आप सेट करो एंड देन गो फॉर लेजर्स। नहीं तो एकदम ऐसे लेजर्स में भी कोई मैजिक एकदम नहीं होगा। अगर होगा भी तो इट विल बी शॉर्ट लिव। पेशेंट आप बोलोगे 15 दिन के बाद वो इफेक्ट चला गया वापस, क्योंकि वो इफेक्ट सस्टेन्ड ही नहीं रहेगा अगर आपका बाकी चीजें इन प्लेस नहीं है। राइट। एंड थर्ड इज फिटनेस, आपका एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, आपका योगा, एंड इट्स लाइक इट्स नॉट गोइंग ओनली जिम, योगा, स्पोर्ट्स, एनीथिंग यू कैन डू, बट कुछ आपका एक्सरसाइज, देयर हैज टू बी सम हेल्दी एनर्जी एक्सपेंडिचर। स्ट्रेस लेवल आपका कम रहना चाहिए, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो जब आप सब चीजें करते हो तो डेफिनेटली स्किन ग्लो करेगी। सो इफ आई टॉक टू यू अबाउट दीज डिफरेंट फैक्टर्स वन बाय वन, कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन स्किन हेल्थ? सो हाउ इम्पोर्टेंट इज हाइड्रेशन फॉर स्किन हेल्थ? Hydration is very important. Dry skin will never glow. And dry skin will always have fine lines faster as compared to those who are hydrated well. Right. So and it's a long term process. कई बार पेशेंट ना, जैसे मैं उनको बोलती हूँ आप हाइड्रेट करो, आप पानी पियो, 2-3 महीने वो जोश में पूरा अच्छे से पियेंगे, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स जैसे उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, फिर वो मेरे पास आते नहीं है काफी टाइम तक, गैप हो जाता है, एंड देन थोड़े दिनों बाद वापस वो पानी पीना कम कर देते हैं। बिकॉज़ आई हैव सीन कि आजकल हम वो एरा में है कि हमें पानी के लिए भी रिमाइंडर चाहिए। हाँ, वो सारे एप्स आ गए हैं, वो बॉटल्स पे मार्कर आ गए हैं। स्टॉप लिसनिंग टू आवर बॉडी। यस, एक्चुअली हम लोग पूरे टाइम एसी में भी रहते हैं ना, तो कई बार हमें वो पता नहीं चलता कि हमें प्यास लग रही है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने जो मैक्सिमम लोगों से फीडबैक सुना है कि हमें वॉशरूम्स, ऑफिस में जाना नहीं पसंद आता, हम ट्रैवल बहुत करते हैं, तो टू अवॉइड गोइंग टू वॉशरूम्स दे आर ड्रिंकिंग लेस वाटर। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, बट देन वॉट एवर इट इज, द बेस लाइन इज आपको पीना है, पानी पीना पड़ेगा ही, वैसे है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप फॉर आवर स्किन? Sleep is very important, and it should be 7 to 8 hours.
जो कि 7 to 8 hours sleep is a luxury now. Yeah, हम true. लोग और बहुत सारा ना इसको ग्लोरीफाई किया जाता है कि 5 घंटा सो के वो काम करता है, 6 hours सो के वो पूरे दिन काम करता है, बट दैट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म. यू Yeah. कैन नॉट डू इट एज अ लॉन्ग टर्म. तो Correct. उसको इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. एंड वी हैव सीन नॉट ओनली स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने कितने सारे लोगों का आजकल हम पढ़ते हैं ना कि दे आर वेरी यंग, उनको हार्ट अटैक आ रहा है. Right. उनको ये अभी कितना ज्यादा हो गया कि यंगस्टर्स बिलो 40 को भी हार्ट अटैक रेट इतना बढ़ रहा है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस. सो Correct. इट्स नॉट ओनली स्किन. अगर आप पूरा बॉडी का देखेंगे तो स्लीप इज वेरी, बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग योर बॉडी इज रीजनरेटिंग. Yeah. तो जब आप सो रहे होते हैं बॉडी रीजनरेट करती है, बॉडी रिपेयर वर्क करती है. तो वो रिपेयर हो ही नहीं रहा अगर आप 5-6 घंटा सो रहे हो. Correct. Hmm. How important is exercise for skin? एक्सरसाइज बेसिकली मसल्स जो अगर आपके अच्छे रहते हैं, मसल्स इज इटसेल्फ एंटी एजिंग. तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो आप भी यही बताते हो, मैं तो काफी सारा आपसे सीखा है इससे रिलेटेड. Right. वी शुड फोकस ऑन फैट लॉस, Yeah. नॉट मसल लॉस. Yeah. बट मैक्सिमम लोग क्रैश डाइट के Yeah. चक्कर में दे उसका उल्टा इफेक्ट रहता है Yes. आपके स्किन पे. एंड आफ्टर लूजिंग वेट दे कम टू मी एंड दे से वेरी प्राउडली, मैंने 2 महीने में 10 किलो कम कर लिया, या 3 महीने में भी 10 किलो कम कर लिया. तो बट देन व्हेन यू सी दे हैव हेयर फॉल इश्यूज, एकदम से स्किन सैग कर Sag हो जाती रहा है, है. Yeah. सडनली फाइन लाइंस, रिंकल्स, हॉलोनेस दिखने लगता है. Correct. एंड दे कंप्लेन ऑफ लूज स्किन ऑल ओवर अदर एरियाज आल्सो. Correct. सो फर्मनेस नहीं रहती है वो बॉडी में. So, Right. मैं भी उनको कहती हूँ क्यों, बिकॉज वाइल डाइटिंग आपने वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो स्किन पे तो बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता है. Right. Right. आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंस है अच्छे स्किन के लिए? स्ट्रेस को तो आजकल हमने देखे ना खूब सारे बुक्स एंड अदर पॉडकास्ट एंड बहुत सारे उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी कोर्सेज भी आने लग गए हैं Yeah. आजकल. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार तो मुझे लगता है कि किस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं लोग पता ही नहीं. अभी मेरे पास तो जो भी पेशेंट आता है एंड वो कोई भी प्रोफेशन का हो, व्हेन आई आस्क देम ना, दे सेड दे आर स्ट्रेस्ड आउट. Yeah. मैंने एक बार 12-13 इयर्स के बच्चे से पूछा तो वो कहता है मेरे को बहुत स्ट्रेस है. मैंने कहा 12-13 इयर्स में तो हमको स्ट्रेस का मतलब भी नहीं पता था हाँ, सीरियसली. मैंने कहा आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है बच्चे? तो ही इज लाइक कि मेरे एग्जाम्स है, मेरा बहुत सारा टीचर होमवर्क दे देती है, तो इसका स्ट्रेस है. एंड अदर एज ग्रुप्स एंड वॉट एवर प्रोफेशन, एवरीवन से यस आई एम स्ट्रेसफुल. आई आज अ शेफ, वो कहते हैं मैं भी स्ट्रेस में हूँ. फैशन डिजाइनर वो भी स्ट्रेस में है. Correct. मतलब बिकॉज आई नीड्स क्रिएट, एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ एंड जो पहले पार्ट एंड पार्सल था लाइफ का, आजकल वो भी हमें कंपटीशन लगता है, वो भी हमें लगता है कि वी आर द ओनली वन डूइंग दैट. हाँ, राइट. एंड आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से राइट. we have comparing our life with anyone Yeah. जिसको personally जानते Yeah. भी नहीं थे. Right. पहले ऐसा नहीं होता था. Right. So one factor which I would like to bring up here is when I speak to my clients and even while consultation they also put that point कि मेरा हेयर अच्छा नहीं है, हेयर फॉल बहुत होता है, स्किन अच्छा नहीं है, स्किन में ड्राइनेस है, नेल्स बहुत ब्रिटल रहते हैं. Yes. सो वहाँ पे मैं तो हमेशा मेरा पूरा जो फोकस होता है वो होता है राइट इनटेक ऑफ प्रोटीन पे. व्हाट वुड यू लाइक टू से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव गुड प्रोटीन फॉर स्किन, नेल्स एंड हेयर? प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट एंड प्रोटीन के साथ साथ जैसे कैल्शियम इनटेक है, स्पेशली फॉर वुमेन. आई हैव सीन उनको पोस्ट प्रेगनेंसीज एंड ऑल, कैल्शियम एंड आयरन दे डोंट नो कि डेफिशिएंट है एंड दे कीप कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन और लैक ऑफ ऐसा एनर्जी नहीं है, फटीगनेस फील हो रहा है, एंड दे थिंक कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, बट बेसिकली आप न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो. आइदर आप उसको डाइट से करो, एंड अगर आप डाइट से आपकी बॉडी कवर अप किसी वजह से नहीं कर पा रही है तो देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स. Right. So, Divita, we spoke about different molecules, trends, but one thing, if we go back to basics, okay? Now again, there are so many social media posts, myths and what not कि स्किन केयर रूटीन में आजकल बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है. बट अगर मुझे आपसे पूछना है कि if I have a healthy skin, no issues, and I want to have basic skincare routine, okay? What do you think? What all should be included? How many steps should be followed? And again, what should be the morning routine and what should be the night routine? So generally, I customize skincare routine
first is as per the age. Yeah. Second is whether they just want a maintenance skincare routine or treatment based skincare routine. Okay. So treatment based skincare routine होते हैं तो कई बार 3 to 4 steps हो सकते हैं, पर आप जनरल मेंटेनेंस कर रहे हो तो कई बार तुम आई जस्ट फिनिश इट ऑफ इन 3 मैक्सिमम 2. एंड ऐसा नहीं है मॉर्निंग में अगर अपने 3 स्टेप्स हो जाते हैं जनरली बिकॉज एक सनस्क्रीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है. Yeah. नाइट का यू कैन मेक इट सिंप्लीफाई एंड टू प्रोडक्ट्स का भी स्किन केयर रूटीन हो जाता है. Right. तो जनरली पेशेंट का वर्क प्रोफाइल भी हम देखते हैं, हाउ मच टाइम डू दे हैव, क्योंकि आप कहाँ टाइम है आपको 8-8 क्रीम्स लगाने का. Correct. कि आप मतलब सुबह से आप 10-15 मिनट में पास कितने सारे पेशेंट्स हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स, मेल फीमेल दोनों ही, कि हमारे पास 5 मिनट से ज्यादा होता ही नहीं है. और अगर tedious है तो फिर वो consistently करना is a हाँ. problem. कंसिस्टेंसी एंड हैवी टू पॉकेट ऑल्सो. Yeah, obviously. इट शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने 20s में किया तो 30s भी करने हो, 60s भी कर रहे हो. हाँ. मतलब यू हैव टू डू फ्रॉम 20 to 60 एवरी टाइम. एक बेसिक मेंटेनेंस है. इट्स लाइक तो इट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, इजी, फास्ट एंड सस्टेनेबल. करते रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. Right. तो मैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट और उनकी स्किन कंडीशन के हिसाब से एक स्किन केयर रूटीन बनाती हूँ. एज मिनिमम एज 2 steps टू मैक्सिमम 4. दैट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस. कभी कभार होता है कि पेशेंट का कोई इवेंट आ रहा है या कुछ उनका बहुत बड़ा फंक्शन है, या कई बार ब्राइड्स आते हैं कि दे हैव अ फंक्शन एंड बहुत ज्यादा स्किन डैमेज होती है. They have तो- certain goals. हाँ. तो कभी फास्ट इम्प्रूवमेंट वो भी तभी हो पाता है कि अगर उनकी स्किन सुपर सेंसिटिव नहीं है. अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते हो. Right. तो आई Right. जज कि अगर उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव नहीं है देन ओनली हम थोड़ा 4 to 5 कभी कभी जाते हैं. एंड दैट टू बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, कि चलो 2 महीने के लिए कर लो Right. बिकॉज यू हैव अ वेडिंग कमिंग. Yeah. Yeah. And after wedding then come to maintenance again to basic 3 steps. Right. 2 steps basic वाला. राइट. अगर ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, जहाँ हम बोल रहे हैं कि 2 to 3 स्टेप्स में हो सकता है, तो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दैट So स्किन रूटीन? first is always cleansing. हम बाहर जाते हैं, pollution, oil. या हमारा नेचुरल स्किन जो ऑयल बनाती है. राइट. तो फर्स्ट इज ऑलवेज क्लीनिंग द स्किन. तो क्लेंस करना है. तो फेस वॉश में भी डिफरेंट वेराइटीज है विच वी कैन चूज एज पर आवर स्किन टाइप. या Second is some treatment based cream. Either it could be जैसे vitamin C, niacinamide, retinols, peptides or any other molecules which is very actively treating some part of your skin. या Third is hydration and fourth is sunscreen in the morning routine. And when we talk about night, so same way we can make it as simple as 3. First is like cleaning the skin, then some treatment based molecule, and if you have a super dry skin you can add a moisturizer. राइट. एंड कई बार ऑयली स्किन होती है तो जो ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीम्स होती है उसमें भी थोड़ा मॉइस्चराइजर रहता है. तो ऑयली स्किन वालों को तो कई बार 2 स्टेप्स में भी काम हो जाता हो है. जाता है. राइट. हम्म. एंड जब हम बोलते हैं कि ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है, या फॉर एग्जांपल देयर इज सम डिफरेंट पर्पस टू इट, ट्रीटमेंट टू इट, Yes. सो व्हाट ऑल इज जनरली इंक्लूडेड इन दैट? ट्रीटमेंट जैसे अगर किसी को एक्ने है तो हम उसमें एक्ने बेस्ड ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीम, आइदर वी यूज सैलिसिलिक एसिड, मेंडालिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड अगर एक्ने पिगमेंटेशन आ गया है. राइट. हाँ, रात में कई बार हम ट्रेटिनोइन बेस्ड क्रीम्स दे देते हैं फॉर स्कार्स. सो ऐसे करके फिर पिगमेंटेशन एंड वेद इट्स अ नॉर्मल पिगमेंटेशन, फीमेल्स को मिलाज्मा हो जाता है स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी या बहुत टाइम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सनलाइट होता है एंड दे डोंट यूज सनस्क्रीन्स. या तो फिर उनको हम ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीम देते हैं जिसमें पिगमेंटेशन पे हम टारगेट करते हैं, मिलानिन पे टारगेट करते हैं. एंड देन एंटी एजिंग तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं अभी, जैसे आगे फाइन लाइन रिंकल्स. तो अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देते हो तो आपको फिर बहुत ज्यादा जैसे लेजर है, बोटॉक्स है, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप Right. बहुत राइट टाइम पे आप स्टार्ट करते हो. राइट. तो मेनी थिंग्स आर कंट्रोलेबल, दे आर रिवर्सिबल. बट आप बहुत लेट स्टार्ट करोगे तो आपका काफी कुछ डैमेज हो Correct. चुका होगा जो एकदम से रिवर्स नहीं हो नहीं हो पाएगा. सकता. राइट. And then sometimes we want quick fix. या दैट. Because this is very slow and consistently if you do, then it will going to give you very good results. या सो यू नो, आप जब ये रूटीन के बारे में बता रहे हैं एंड सोशल मीडिया के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर इज अ लॉट ऑफ रेमेडीज ऑन सोशल मीडिया, Yes. जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट, आपका एक्सपर्टाइज, ये प्रोडक्ट्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है. एवरीथिंग इज देयर इन योर किचन. दैट इज हाउ दे प्लेस इट. Yes. Now I have seen my daughter. She'll come to me and tell me ki mama every Saturday we should do this. We'll have glowing skin. We'll have Korean like skin. She tells me glass skin. And do you feel without an expert consultation any ingredient can be used on our skin?
So can there be any challenges for this or side effects for this? ऐसा नहीं है कि सारे DIY खराब होते हैं, कई बहुत अच्छे भी होते हैं, कई बार होता है कि आपको वो भी DIY भी आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मलाई लगाना पसंद करते हैं, हाँ, फिर मलाई में दे विल ऐड टर्मरिक या कई बार और कुछ प्रोडक्ट उसी में ऐड करके दे मेक अ मिक्सचर ऑफ 2-3 इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मलाई लगा लो, ठीक है। अगर पहले से आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल भी है और मलाई, और वो भी आप बॉम्बे के वेदर पे आप लगा रहे हो फॉल से, जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी हॉट एंड ह्यूमिड है, तो वो शायद वो मलाई से ही आपको पिगमेंट एक्ने छोटे छोटे कॉमेडॉन्स आ सकते हैं। एंड देन इट्स सीजन, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, विंटर्स है और आपने मलाई लगा ली या थोड़ा दूध लगा लिया साथ में मिक्स करके, मलाई दूध ऐसे 2-3 इंग्रेडिएंट, रोज वाटर या हल्दी डाल के आपने लगा लिया ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली, सो डेफिनेटली इट्स गुड। पर वही चीज आप बॉम्बे में कोई टीनेज गर्ल कर रही है जिसकी ऑयली स्किन है, तो उसको ये शायद सूट नहीं होगा। तो ये DIY भी आपको थॉटफुली देखना पड़ेगा कि वो स्किन पे क्या कर रहे हैं। So as we say in nutrition, one size fits all is a wrong concept. So one remedy is good for everyone is also not right. Yes. एंड फिर जैसे मलाई लगाते तो कई बार मैं पेशेंट मुझसे भी पूछते हैं कि हम मलाई लगा सकते हैं क्या, कैन वी कंटिन्यू इट वंस इन 15 days? तो कई बार मैं कहती हूँ ये सब लगा लो, पर जैसे उसको आप 10 मिनट ही रखो, ज्यादा देर मत रखो। फिर हटाने के बाद ऐसा नहीं कि मलाई लगा ली तो उसके ऊपर फिर सनस्क्रीन नहीं लगाना है। मलाई हटाने के बाद सनस्क्रीन, फिर उसको वॉश करो अच्छे से, बहुत ज्यादा ओवर स्टिक भी नहीं रहने चाहिए, फिर निकाल के उसको आप सनस्क्रीन लगाओ। करेक्ट। और ऐसे 1 in 15 days आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। राइट। सेम थिंग गोज विद अदर DIY, लाइक मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज्यादा है, पर मुल्तानी मिट्टी इज मोर फॉर दोस हु आर ऑयली स्किन। हाँ, अगर ड्राई स्किन वाला मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं तो वो और ड्राई होगी करेक्ट। स्किन, तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना, आपका बैरियर रिमूव हो रहा है, और बल्कि और ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन होगी तो और रिंकल्स फास्ट आएंगे। राइट। सो DIY को भी हमें सोच के करना है। राइट। वन थिंग आई वांट टू आस्क यू एज अ मदर नाउ ये तो आई थिंक मेरे साथ जो बाकी के मॉम्स भी है उनका भी ये कंसर्न रहेगा। What I got to know at the age of 30-35, my daughter knows at the age of 11-12. Again, thanks to social media and all the knowledge available on internet. Now, so she's just 12 years old. And what do you think, what is the basic skincare these children should do in their teens? Okay. सो टीनेजर्स का भी स्किन केयर, मैक्सिमम तो इनकी स्किन ऑयली रहती है बिकॉज उस टाइम पे हमारे ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, सीबम प्रोडक्शन होता है, प्यूबर्टी जस्ट स्टार्ट होता है, लॉट ऑफ बहुत फ्यू पेशेंट्स रहते हैं जिनको थोड़ा एटोपिक स्किन रहता है, बच्चे उनकी स्किन ड्राई रहती है। तो ऑयली स्किन के लिए यू कैन यूज अ गुड फेस वॉश, क्योंकि दे आर ऑल्सो लाइक वेरी अवेयर कि हमें पिंपल्स करना है। एंड आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग दैट 2 दिन बाद मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे पिंपल आ गया, या मेरा फेयरवेल का फंक्शन है 13, 14, 16, 10, 12 के बाद फेयरवेल फंक्शन है, तो आई डोंट वांट दैट पिंपल। सो बेसिकली ऑयली स्किन है तो मैं उनको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश जैसे बेसिक एक वो कर सकते हैं। एंड देन प्रॉपर पिंपल्स है तो वी विल गिव एंटी एक्ने क्रीम, और अगर नहीं है तो जस्ट सिंपल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो उनके मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्किन को चिपचिप ग्रीजी ना बनाए। राइट। तो बेसिक कर सकते हैं, एंड सेम यू कैन रिपीट इन द नाइट ऑल्सो। ओनली इफ यू हैव एक्ने, जनरली उस एज में एक्ने इज मोर, पिगमेंटेशन भी इतने बच्चों को नहीं होता है, एक्ने इज द मेन कंसर्न उस एज में। तो एक्ने रिलेटेड क्रीम्स हम उनको या तो मॉर्निंग और नाइट रूटीन में ऐड करा देते हैं। यस। सो बच्चों का ये स्किन केयर के लिए हमने बात किया, बट अब वो भी है ना कि जो मॉम करती है वो उनको करना है। तो अब सिरम्स वगैरह का वो यूज देखते हैं, राइट? तो ऐसे कोई सिरम्स है जो बच्चे भी यूज कर सकते हैं, टीन्स जो है वो यूज कर सकते हैं, या दे शुड कम्प्लीटली अवॉइड इट? एकदम छोटे बच्चों को तो मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती हूँ वो यूज करें। यहाँ पर 16 टीन के बाद थोड़ा बहुत सीरम्स they can start, right, and mild ones जैसे नियासिनामाइड आपने कहा ना, तो माइल्ड वर्जन से 2% भी अगर उन्हें यूज किया ना, that is enough. Okay. अगर उनकी बहुत ऑयली स्किन है then they can go for higher percentages like 5%, 10%, right, but just as a beginner and just for maintenance
उनको कुछ यूज करना है तो माइल्डर वंस। राइट तो अभी राइट टीन एज वालों को ग्लाइकोलिक एसिड 10% लगा रहे हैं, तो वो देयर इज नो सेंस ऑफ इट। राइट तो और अगर उनका मन है मदर्स को कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट माइल्ड वंस Yeah, वैसे। right. So one thing, Divita, I wanted to ask, for me specifically, if I ask you, when I used to do makeup earlier in my young age, that time there was only 3-step makeup or 4-step makeup. We only knew about foundation, compact or some powder and lipstick. That is what I think. And अगर बहुत अच्छा इवेंट है तो हम लाइनर वगैरह लगा लेते थे. अब मैं जब देखती हूँ, जब मुझे ऐसे शूट्स करने हैं, कॉर्पोरेट्स करने हैं, या when you have events, even in the daily routine, I have seen my friends following 10-step makeup, 12-step makeup, what not. But I really want you to talk about what are the side effects of these, इतना बड़ा जो मेकअप रेंज है, इतने प्रोडक्ट्स हम स्किन पे अप्लाई करते हैं लेयर वाइज. आई नो फ्यू, जैसे हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से, तो मॉइस्चराइजर तो हमारे केयर के लिए है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब हेवी कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो बहुत सारी चीजें, मेरा एक पर्सनली कंसर्न बहुत रहता है कि आपके पास आपको डार्क सर्कल्स है तो आप एक हेवी लेयर कंसीलर का यूज करते हो, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं आईज के एकदम बाजू में कोई केमिकल यूज कर रही हूँ. राइट. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेकअप कितना सेफ है? एंड सेकेंडली, मेकअप का सिलेक्शन आजकल बहुत ट्रिकी हो गया है, बिकॉज हम लोग एड्स देख के प्रेफर करते हैं. सो एड में जो लुक आ रहा है, इवन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी आप देखो, एज आई सेड, कि आप देखते हो और आपको लगता है वाओ, मेरा कृति सेनन इज यूजिंग दैट एंड आई एम गोइंग टू लुक लाइक हर, एंड दैट इज हाउ यू सिलेक्ट द प्रोडक्ट. राइट. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द मेकअप प्रोडक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द स्किन? सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, आप मेकअप यूज करो, बट मेकअप का आपको तभी फायदा होगा कि जिन स्किन आपका अच्छी होगी, तो मेकअप प्रोडक्ट्स अपने आप कम होने देंगे. हाँ, डैमेज स्किन ज्यादा होती है तो उतने प्रोडक्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, कंसीलर उतना ज्यादा लगाना पड़ता है टू कवर इट अप. सो मेरी एक पेशेंट थी, जैसे शी वाज नॉट यूजिंग एनी स्किन केयर रूटीन एंड बहुत मेकअप करना पड़ता था बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल commitments, but then gradually when we worked on her skin, she herself told me the amount of concealer when I used to use before, it has come down. फिर फाउंडेशन धीरे धीरे कम होने लग गया, क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड थी, फिर देन टोन्स ऑफ फाउंडेशन चेंज हो गया विद द ट्रीटमेंट. सो बेसिकली इट इज लाइक ना कि यू हैव अ क्लीन कैनवास, उसके ऊपर ही पेंटिंग अच्छा होगा. करेक्ट. हाँ. सो बेसिकली स्किन केयर एंड मेकअप दे गो हैंड इन हैंड. एंड कई बार तो अगर आपकी स्किन इतनी अच्छी नेचुरली ग्लो कर रही है, यू मे स्किप मेकअप फॉर स्मॉल इवेंट्स, यू डोंट रिक्वायर एक्चुअली. हाँ, बिग इवेंट से अगर आपका स्किन डैमेज है तो ही आपको मेकअप से उसको छुपाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. राइट. एंड ठीक है, थोड़ा मेकअप अगर आपको इवेंट्स के लिए यूज करना पड़ रहा है, इट्स ओके, यूज गुड क्वालिटी मेकअप. Make sure कि you are not using the makeup which is expired. And the most important step is कि जब आप रात को वापस घर आ रहे हो, आप मेकअप रिमूव अच्छे से कर रहे हो. मेकअप रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. गलती से आपने रात को लगा के सो जाते हो, then it is a problem because ये सब heavy layered होते हैं, your skin is unable to breathe. आप मेकअप हटाओ अच्छे से, फेस को क्लेंस करो, अपना नाइट केयर रूटीन करो आफ्टर रिमूवल, तो जो डैमेज अगर माइनर कुछ रहता है तो वो कवर अप हो जाता है. करेक्ट. एंड विद द अवेयरनेस अभी जो लोगों में आई है, इवन मेकअप्स भी बेटर क्वालिटी के आने लग गए हैं. सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन बेटर क्वालिटी मेकअप. एंड अभी काफी सारी ब्रांड्स ऐसा भी कर रही है कि मेकअप विद स्किन केयर, that they are putting good ingredients which is like less harming for the skin. And they are being included in skin makeup also. Yes. So उस type की brands में आप invest करो. Yes. You choose your products nicely. And then वही साथ में आप अपना स्किन केयर हेल्दी रखोगे, स्टाइल रखोगे, तो मेकअप से आपकी स्किन को उतना डैमेज नहीं होगा. राइट.